السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 Tombs، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی، وزیر اعلیٰ نے سرویئرز میں لائسنس تقسیم کیے۔ مالکان کے حقوق کا تحفظ کرنا سرویئرز کی ذمہ داری، دھرانی کے بھوت سے نجات دلانے کا وعدہ پورا، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ BRS پارٹی BJP کی بی ٹیم، جوبلی ہلز پارلیمنٹ انتخابات کی طرح سازش کی جا رہی ہے۔ چار مینار کے سدبھاونا یاترا کی یاد میں منائے گئے پروگرام میں وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب حکومت کی کارکردگی کے لیے ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ کانگریس ترقیاتی کاموں کو روک کر بلڈوزر کی سیاست کر رہی ہے، KTR کا الزام۔ اور نظام آباد میں کانسٹیبل کے قتل میں ملوث راؤڈی شیٹر گرفتار، دوران گرفتاری ملزم نے ایک اور شخص کو زخمی کر دیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
शिल्पा कलावेदिका में तरबियत हासिल करने वाले सर्वेयर्स को लाइसेंस तकसीम करने की तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की हर जदोजहद ज़मीन के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। उन्होंने कहा कि ज़मीन के लिए भक्ति और मुक्ति के लिए उस ज़माने में मुसल्लह किसान तहरीक चलाई गई थी। हम ज़मीन को अपनी माँ के बराबर मानते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अब ज़मीन के मालिकान के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की सरहदों का तयन करने की ज़िम्मेदारी आप सर्वेयर्स पर है। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो इसका नुकसान न सिर्फ आपको बल्कि हुकूमत की साख को भी पहुँचेगा, इसलिए हर शख्स ज़िम्मेदारी के साथ काम करे। रेवंत रेड्डी ने साबिक़ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में लाया गया धरानी कानून चंद जागीरदारों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। धरानी के ज़रिए ज़मीन पर कब्ज़ा जमाने वालों को अवाम ने गुज़िश्ता इंतखाबात में सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि इख्तिदार में आते ही धरानी भूत से नजात दिलाएंगे और हमने वो वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ है कि 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाया जाए। इस मकसद के उसूल के लिए आप सबका ताउन ज़रूरी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके साथ खड़े रहना हमारा फ़र्ज़ है। तेलंगाना की तरक्की में आप सबको अपना हिस्सा अदा करना होगा। चार मीनार पर राजीव गांधी सद्भावना यात्रा की याद में मुनक्किदा प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर वज़रा, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद और दीगर कांग्रेस के कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत के लिए उस वक्त राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा का आगाज़ किया था और आज हम उन्हीं के जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। वज़ीर आला ने सलमान खुर्शीद को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड देने पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ गांधी दरअसल भारत का मुतरादिफ है। गांधी ख़ानदान ने हमेशा कौम को मुत्तहिद रखने और क़ुरबानी देने की रिवायत कायम की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सलमान खुर्शीद का गांधी ख़ानदान से ताल्लुक़ आज का नहीं बल्कि 3 नस्लों पर मुहित है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राजीव गांधी की ही तहरीक से भारत जोड़ो यात्रा निकाली ताकि मुल्क में इत्तेहाद कायम रहे। सियासी तनाजुर में बात करते हुए वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस पार्टी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में खुफिया मुआहदे के ज़रिए बीआरएस ने बीजेपी को हिमायत दी, जिसके नतीजे में उनके 21% वोट बीजेपी के खाते में चले गए। रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में भी यही साजिश दोहराई जा रही है और आइंदा इंतखाबात में वोट तकसीम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अपील की कि तेलंगाना के अवाम को इन साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। यह बहुत कीमती है। ये अवार्ड आपको नहीं, जो अवार्ड का नाम आज देश भर इसका रोशन लागू करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी अवार्ड किसी को रिकॉग्नाइजेशन देते, कभी कभी किसी को अवार्ड दिए तो अवार्ड को कुछ पहचान आ जाते। आज राजीव सद्भावना अवार्ड को इस देश में पहचान मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके दादा, आपके पिताजी और आप इस देश के सेवा में आप लोग काम किए। हम लोग आज जो ये जिम्मेदारी से जो काम किए, ये तो गुजारिश है मेरे तरफ से। राजीव गांधी जी ने जब 21 साल था वोट हक, राजीव गांधी जी ने युवाओं को वोट देने के लिए 18 साल कर दिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। मगर जिस दिन 21 साल वोट का हक थे, तब एमएलए एमपी चुनाव लड़ना है तो 25 साल थे। मगर आज के तारीख में 21 साल में आईएएस आईपीएस बनकर इस जिले को, इस देश को चला रहे, तो तब एमएलए क्यों नहीं बन सकते 21 साल में? जब वोट हक था 21 साल, तब चुनाव लड़ने के लिए 25 साल लागू किए, कानून किए थे। आज वोट हक 18 साल हो गए। इसीलिए हमारे तरफ से राजीव गांधी जी के याद में उन्होंने जो अमेंडमेंट किए, उनके याददाश्त में
असेंबली चुनाव में 21 साल चुनाव लड़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है। हमारे तरफ से, तेलंगाना के तरफ से आने वाले दिनों में असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास करके आपको जिम्मेदारी देंगे। आप दिल्ली में कहीं पर भी केंद्र सरकार से और कांग्रेस पार्टी के तरफ से CWC मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी में भी ये अमेंडमेंट लागू करना है, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए युवताओं को मौका देना है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स जिमनी इंतखाब 11 नवंबर रियासत में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी, नज़्म-ओ-नस्क और साख पर रेफरेंडम साबित होगा। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि 2 बरसों में कांग्रेस हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे रोक दिए और बुलडोजर सियासत शुरू की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो 420 जमानतों के धोखे को याद रखते हुए कांग्रेस को मुस्तरद करें। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत में बदइंतजामी और करप्शन आम हो चुका है। काबीनी वज़रा कमीशन के लिए आपस में लड़ रहे हैं और अवामी मसाइल पसे पुश्त डाल दिए गए हैं। केटीआर ने BC रिजर्वेशन के मसले पर कांग्रेस पर कानूनी तैयारी के बगैर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अगर वाकई मुखलिस हैं तो पार्लियामेंट में BC बिल के लिए आईनी तरमीम लाएं। बीआरएस राज्यसभा में ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो फेज 2 और एयरपोर्ट मेट्रो जैसे मंसूबों को नजरअंदाज करके वजीर आला ने शहर के मुस्तकबिल पर पानी फेर दिया है। आखिर में केटीआर ने कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस की जीत तेलंगाना की तरक्की के नए दौर की शुरुआत होगी। इससे पहले पार्टी दफ्तर में राजेंद्र नगर के दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ఆటో డ్రైవర్లు కోపంగా ఉన్నారు. ఒక ఆటో డ్రైవర్లే కాదు, బస్సు డ్రైవర్లు కోపంగానే ఉన్నారు. ఆఖరికి పారిశ్రామికవేత్తలు కోపంగా ఉన్నారు. వ్యాపారం చేసుకునే బిజినెస్ వాళ్ళు కోపంగానే ఉన్నారు. మహిళలు కోపంగా ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో కోపంగా లేని వాళ్ళు ఎవరో ఒకరిని చూపెట్టు నాకు. ఫలానా వర్గానికి మంచిగా చేసినా నేను, వాళ్ళు నాకు ఓటేయాలి ఫలానా కారణం అని చెప్పేది ఏదైనా ఉందా? మైనారిటీ సోదరులకు మాటలు చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? 4000 కోట్ల బడ్జెట్ పెడతా, మైనారిటీ सब प्लान పెడతా. क्या करे फिर आप? लगाए सब प्लान। माइनॉरिटी को आज तक एक MLA नहीं दिए, एक MLC नहीं दिए, एक मिनिस्टर भी नहीं दिए, और 4000 करोड़ बजट बोले। कहाँ है 4000 करोड़ बजट? रमज़ान का जो तोहफा मिलता था केसीआर साहब के टाइम पे, वो भी ख़त्म, उसको भी ख़त्म कर दिया आप। अगर हैदराबादी लैंग्वेज में बोलना है, हैदराबादी लैंग्वेज में अगर बोलना है, पूरा तेलंगाना को और हैदराबाद को बैगन में मिला दिए, बैगन में मिला दिए। अरे क्या करें आप? డెవలప్మెంట్ చేస్తా. ఏం డెవలప్మెంట్ చేసినావు 2 నెలల? ఏడ చేసినావు చూపెట్టుపా. మనం గట్టి ఒక్కటి మాత్రం చేస్తుండు భయ్, మంచిగా కరెక్ట్ చేస్తుండు. జేబుల కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతుండు. యాడ మనం కట్టిన ఫ్లైఓవర్ కనబడితే నేను కట్ చేస్తాను కట్. కొత్తది కట్టరా, అదొకటి నీ ముఖం ఉంటే. तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों की अवामी हुकूमत ने लोगों की जिंदगियों से अंधेरे दूर करके खुशहाली की नई रोशनी लाई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि दिवाली की खुशी अमन और जोश खरोश के साथ मनाएं, मगर माहौलियाती आलूदगी से बचते हुए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पटाखे जलाएं ताकि कोई हादसा न हो। NTR ग्राउंड पर कृष्णा सदर सम्मेलन उत्सव कमेटी के ज़र एहतमाम सदर सम्मेलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बहसीत मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि यादवों का किरदार तेलंगाना की तश्कील और तरक्की में बहुत अहम रहा है। हमारी हुकूमत के क़याम के बाद सदर उत्सव को रियासती सतह का त्यौहार करार देकर फ़ंड्स फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि फलाह बहबूद और सियासी मैदान में यादों का मुनासिब मुकाम दिया जाएगा और कभी कभार ताख़ीर भी हो तो उन्हें मौका फराहम करके इज़्ज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मसला हो तो बराह करम हुकूमत के पास आएँ, उनके मसाइल हल करना उनकी ज़िम्मेदारी है। हैदराबाद की तरक्की में यादव भाइयों के ताउन की ज़रूरत है और वज़ीर आला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आपका ताउन हमेशा इसी तरह जारी रहेगा। तेलंगाना में BC तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए हर सियासी जमात संजीदा है। इसका सबूत हफ्ते के दिन BC JSC बंद के मौके पर देखा गया, लेकिन BC बंद में आला ज़ात कायदीन की गैर हाज़िरी ने जहनों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हफ्ते के रोज़ मुनक़्क़दा रियासतगीर बंद में तीनों बड़ी पार्टियों के आला ज़ात कायदीन गैर हाजिर रहे। इनमें BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव, BJP LP फ्लोर लीडर A महेश्वर रेड्डी,
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, एमएलए हरीश राव और कांग्रेस के वज़रा कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी वगैरह शामिल हैं। इन कायदीन ने वादा किया था कि वो बीसी रिजर्वेशन के जवाब की हिमायत करते हैं, मगर जब अमली तौर पर बंद में शामिल होना था तो वो नजर नहीं आए। इस रवैये पर बीसी तबकात में काफी बहस छिड़ गई है। कई बीसी लीडरान का कहना है कि चूंकि इनमें से अक्सर आला जात से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए वो बीसी बंद से दूर रहे। बीजेपी के मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी हैदराबाद में थे, मगर वो सिर्फ सदर त्यौहार में शरीक हुए। बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव भी शहर में मौजूद होने के बावजूद बीसी बंद से दूर रहे। ताहम बीजेपी के बीसी एमएलए पायल शंकर ने बरकतपुरा में बीसी धरने में शिरकत करके इज़हार यगांगत का सबूत दिया। बहरहाल ये साबित करना मुश्किल है कि बीसी तबके के हक में कौन संजीदा है। बीआरएस की साबिक वजीर सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत में खवातीन के साथ नाइंसाफियां बढ़ रही हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला के हल्के में खातून सहाफ़ियों पर मुकदमात, असम्बली में खातून एमएलएस की तौहीन और वजीर मागुंटी सुनीता पर नाजिबा तबसरे इसकी मिसाल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आधी रात को वजीर के घर पुलिस का जाना हुकूमत के खवातीन मुखालिफ रवैये को जाहिर करता है। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला और वज़रा पर लगे इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात सिटिंग जज के जरिए कराई जाएं और गवर्नर मामले में मदाखलत करें। सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि केसीआर के दौर में तरक्की हुई, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में बदअमनी और गन कल्चर बढ़ गया है। उन्होंने बीजेपी कायदीन और मरकजी वजीरों से सवाल किया कि रियासत में बढ़ते वाक़यात पर वो खामोश क्यों हैं। बीआरएस असेंबली विप केपी विवेकानंद ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन किया और हैदराबाद को आलमी सतह पर पहचान दिलाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत में वज़रा कमीशन और रिकवरी में मसरूफ हैं, जबकि एमआईएम जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की हिमायत कर रही है। विवेकानंद ने कहा कि बीआरएस के दौर में अमन, तरक्की और रोजगार में इजाफा हुआ, मगर कांग्रेस के दौर में बदउनवानी, खौफ और सियासी सौदेबाजी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बीआरएस का मजबूत किला है और अवाम आइंदा इंतखाबात में रेवंत रेड्डी हुकूमत को मुस्तरद करेंगे। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में 22 अक्टूबर बरोज़ चाहशुम्बा तक गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के बायस हैदराबाद के नशेबी इलाकों में आबी जमाव का खदशा है। शहर में अगले 3 दिनों यानी 21 अक्टूबर तक बारिश की पेशकयासी की गई है। खम्मम, भदाद्री कोतागुड़म, मुलुगु, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल में दोपहर से रात के औकात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना भर में दिवाली की खरीदारी की धूम है। तेलंगाना समेत दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी दिवाली के पटाखों की खरीदारी के लिए बाजारों में हुजूम उमड़ आया है। तालीमी इदारों की तातीलात के बायस बच्चों की दिवाली तो क़ब्ल-अज़ वक्त शुरू हो गई। दिवाली को रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है। इधर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम पटाखा दुकानों में मुख्तलिफ साइज़ और अक़साम के पटाखे फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल पटाखों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ग्राहकों का कहना है कि वो देसी पटाखों की खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि चीनी साख्ता पटाखों का हाथों में ही फट जाने का खदशा होता है। तेलंगाना महकमे एक्साइज ने शराब की दुकानों के लिए दरखास्तों की हतमी तारीख में तौसी की है। महकमे एक्साइज के कमिश्नर CH हरिकिरण का कहना है कि शराब की दुकानों के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 23 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। उनका कहना था कि मुतवक्का दरखास्तों की अदम अतकाल के बायस महकमे ने यह फैसला लिया है। इससे कबल 18 अक्टूबर यानी बरोज़ हफ्ता दरखास्तों के अतकाल की आखिरी तारीख थी। बताया जाता है कि हफ्ते को एक दिन में 38,000 से ज़ायद दरखास्तें वसूल हुई थीं। अब तक जुमला 85,363 दरखास्तें दाखिल की गई हैं, जिससे महकमे एक्साइज को 250 करोड़ से ज़ायद की आमदनी हुई है। रियासत की मुख्तलिफ बस स्टैंड्स में दिवाली त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया है। हैदराबाद इमलीबन बस स्टैंड, जुबली बस स्टैंड और उप्पल समेत अजला जाने वाली बसों में मुसाफिरों के हुजूम में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। उधर हरमकुंडा बस स्टैंड भी तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। अजला जाने वाली बसों में मुसाफिर नशिस्तों पर कब्जा करने के लिए खिड़कियों से भी बसों में चढ़ते हुए देखे गए।
इस सूरत-ए-हाल ने बुजुर्ग मुसाफिरों और बच्चों को मुश्किल में डाल दिया। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद का तवील अलालत के बाद इतवार की फजर इंतकाल हो गया। वो एक मुमताज़ आलिम दीन, दीनी व मिली खिदमात के लिए मारूफ और रियासत में जमीयत के सरगर्म कायद थे। हाफिज पीर शब्बीर अहमद मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के कानून साज कौंसिल के रुकन भी रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन भी थे, जहां उन्होंने मुसलमानों के तालीमी व समाजी मसाइल के हल के लिए मौसर आवाज़ उठाई। उनके इंतकाल की खबर से दीनी, समाजी और सियासी हलकों में गम और रंज की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ मजहबी और सियासी कायदीन ने हाफिज पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि उनकी इल्मी और मिली खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामे मस्जिद कंजुल उलूम शाहीन नगर में अदा की गई। तदफीन मस्जिद क़ुबा रिसाले खुर्शीद जाही मुशीराबाद में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर शहर की मुमताज़ व मारूफ मजहबी शख्सियात मौजूद थीं। निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस रॉडी शीटर रियाज को पकड़ लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद 6 टाउन पुलिस हदूद में एक गैरेज में लारी के कैबिन में वो छुपा हुआ था। पुलिस ने ड्रोन की मदद से पता चलाया। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो रियाज ने राह फरार इख्तियार की। इस दौरान वहां पर गैरेज में काम करने वाले आसिफ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, जिस पर रियाज ने उस पर चाकू से हमला करके उसका हाथ जख्मी कर दिया। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए रियाज को गिरफ्तार कर लिया और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि हफ्ते को पेश आए वाक़े के बाद निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने रियाज को पकड़ने के लिए 6 टीमें तश्कील दी थीं। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने दबीरपुरा पुलिस के ताउन से कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिलाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े में एक जुनाइल लड़का भी शामिल है। टास्क फोर्स ने बताया कि उसने एक शिकायत पर सज्जाद अहमद खान और सैयद अकबर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को ख्वाजा मुजीबुद्दीन खान ने पुलिस में इस ताल्लुक से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका भाई शुएबुद्दीन खान का ट्रैवल बिजनेस मारूफ ट्रैवल के नाम से चला रहा है। 10 अक्टूबर को उनके यहाँ एक नामालूम शख्स आकर माजा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उसने दूसरों को भी कोल्ड ड्रिंक तकसीम किए थे, जिसे पीने के बाद लोग गशी में चले गए। क्योंकि इस कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाई गई थीं, जिसे पीने के बाद लोग 8 से 9 घंटों तक बेहोश हो गए थे। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाने के मकसद के पसे पर्दा सरखे की वारदात मुश्तबा ज्वेलर्स चंचलगुड़ा में अंजाम देना बताया जाता है, लेकिन वो 10 अक्टूबर के सरखे की वारदात में नाकाम हो गए। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 सेल फोन्स, वॉल कटर मशीन, हेलमेट, वायर कटर, टॉर्च लाइट के अलावा मस्कूरा नशीली गोलियां भी बरामद की हैं। अमेरिका में पेश आने वाले एक सड़क हादसे में तेलंगाना के मंचरियाल के रिहायशी मां और बेटी हलाक हो गए। महलूक खवातीन का ताल्लुक मंचरियाल के रेड्डी कॉलोनी के संगरणी से बताया गया है। बताया जाता है कि विगनेश की 2 बेटियां श्रवंती और तेजस्वी अमेरिका में मुकीम थीं। तेजस्वी अपने वालिद विगनेश और वालिदा रमा देवी को लेकर 18 सितंबर को अमेरिका गई थीं। विगनेश, रमा देवी और तेजस्वी अपनी कार में बड़े बेटे निशांत की सालगिरह मनाने एक होटल गए थे। वापसी के दौरान उनकी कार टिप्पर से टकरा गई। इस हादसे में 55 साला रमा देवी और 30 साला तेजस्वी मौके पर हलाक हो गए, जबकि दीगर खानदान के अफराद जख्मी हुए हैं। जिले संगारेड्डी के इंदौल मंडल के सिंगोपेट गांव के मजाफात में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि पटाखे के गोदाम में आग लग गई थी। इस हादसे में अगरचे तकरीबन 5 से 10 लाख के मालियत के साजो सामान के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी या जानी नुकसान की तला नहीं है। आग हादसे के बाइस देर तक पटाखा गोदाम में बैक वक्त हजारों पटाखे फट रहे थे, जिससे पटाखों की मुहीब आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही थीं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसे पर पहुंच गया और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे की वजह से मुकामी अवाम में काफ़ी परेशानी और फिक्रमंदी देखी गई।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी। वज़ीर आला ने सर्वेयर्स में लाइसेंस तकसीम किए। मालिकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सर्वेयर्स की जिम्मेदारी। धरानी के भूत से निजात दिलाने का वादा पूरा, वज़ीर आला का खिताब। BRS पार्टी BJP की बी टीम। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब पार्लियामेंट इंतखाबात की तरह साजिश की जा रही है। चार मीनार के सद्भावना यात्रा की याद में मनाए गए प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब हुकूमत की कारकर्दगी के लिए रेफरेंडम साबित होगा। कांग्रेस तरक्कियाती कामों को रोककर बुलडोजर की सियासत कर रही है, KTR का इल्जाम। और निजामाबाद में कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस रॉडी शीटर गिरफ्तार। दौरान गिरफ्तारी मुलजिम ने एक और शख्स को जख्मी कर दिया। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।